کہنے کو تو فاقوں پر گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمکخوار ہے تیرا، اسلام مگر اب بھی نمکخوار ہے تیرا۔ اور کہنے کو تو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، کہنے کو تو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کچھ کہا، جب بات آئی بریلی کے امام کی، پوچھا گیا بریلی کے امام سے کہ بریلی کے امام تو اپنے نبی کی شان میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو بریلی کے امام بریلی کے سرزمین سے پکار اٹھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اب میں اتنا جاننا چاہتا ہوں کتنے لوگ سرکار خواجہ غریب نواز کے چاہنے والے ہیں، ذرا ہاتھ اٹھا کر بتا دیں۔ سارے لوگ خواجہ غریب نواز کے چاہنے والے ہیں۔ میں ایک شعر خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پڑھتا ہوں اور آپ لوگوں کی محبت اور عقیدت کا میں امتحان لینا چاہتا ہوں۔ فلائٹ کی طرح اپنے کھلاون کو اڑا ڈالا، علی کے لال نے جے پال کو کلمہ پڑھا ڈالا، انا ساغر سمٹ کر آ گیا خواجہ کے پیالے میں، میرے خواجہ نے تو پانی کو بھی پانی دیا، انا ساغر سمٹ خواجہ کے پیالے میں، انا ساغر سمٹ کر آ گیا خواجہ کے پیالے میں، میرے خواجہ نے تو پانی کو بھی پانی پلا ڈالا، میرے خواجہ نے تو پانی کو بھی پانی پلا ڈالا۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی محبتوں کا میں حوالہ لے کر ایک تاریخی شعر جو ابھی ہمیں ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں وطن سے محبت نہیں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، میرے بھارت پہ کوئی وار ہو وہی نہیں سکتا۔ اب آپ لوگوں کو خاموش نہیں رہنا، کیونکہ جب بات وطن کی آئے تو آپ کو جھومنا ہے، اور اس جھومنے کی یہ بات ہوگی، یہ ثابت ہوگا کہ ہم اپنے ہندوستان سے محبت کرنے والے ہیں، نفرت کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ بس اسی بات کا ہمیں ثبوت دینا ہے کہ میرے بھارت پہ کوئی وار ہو وہی نہیں سکتا، کوئی ہندی ذلیل و خوار ہو ہی نہیں سکتا، ارے جسے خواجہ معین الدین اجمیری سے نسبت ہے، ارے وہ اپنے ملک کا غدار ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری سے خواجہ معین الدین اجمیری سے نسبت ہے، خواجہ کا ہندوستان، جسے خواجہ معین الدین اجمیری سے نسبت ہے، وہ اپنے ملک کا غدار ہو وہی نہیں سکتا۔ اور حکم مصطفیٰ کا اثر کعب آ گیا، ہندل ولی کو نور کا پیغام آ گیا۔ خواجہ کی سب سے پہلی کرامت تو دیکھیے، بھارت کے سرزمین پہ اسلام آ گیا۔ خواجہ کی سب سے پہلی کرامت تو دیکھیے، خواجہ کی سب سے پہلی کرامت تو دیکھیے، بھارت کے سرزمین پہ اسلام آ گیا۔ اگر آپ لوگ تقریر سننا چاہتے ہیں تو ذرا مچل کر بولے سبحان اللہ۔ انشاءاللہ میں نے جو انگلش کا الفاظ میں نے پڑھا ہے انشاءاللہ اس کا میں ٹرانسلیٹ بھی کروں گا، انشاءاللہ اردو ہو یا ہندی میں کروں گا، لیکن میں کچھ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اپنے تقریر کا ہنر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلے ہم تمام لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کوئی اگر آپ سے پوچھ دے کس کے نام پہ بیٹھے ہو تو جواب ایک ہی آئے گا کہ ہم نبی کے نام پہ بیٹھے ہیں، یہی جواب ہوگا نا۔ علماء دین یہاں بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کس کے نام پہ آئے ہیں، جواب ایک ملے گا، ہم نبی کے نام پہ آئے ہیں۔ آپ 10 20 50 روپے لٹا رہے ہیں، آپ سے پوچھے گا کس کے نام پہ لٹا رہے ہو، آپ کا ایک ہی جواب ملے گا، ہم نبی کے نام پہ لٹا رہے ہیں۔ گویا آپ کا 10 روپے نبی کے نام پہ، آپ کا 20 روپے نبی کے نام پہ، آپ کا 50 روپے نبی کے نام پہ۔ آپ کے گاؤں میں کوئی مانگنے والا آتا ہے تو آپ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ مانگنے والا کہاں کا رہنے والا ہے، یہ مانگنے والا یو پی کا رہنے والا ہے کہ بہار کا رہنے والا ہے، یہ مانگنے والا گجرات کا رہنے والا ہے کہ دلی کا رہنے والا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں، ہم صرف اتنا دیکھتے ہیں کوئی مانگنے والا آیا ہے، نبی کے نام پہ مانگ رہا ہے، نبی کے دین کے نام پہ مانگ رہا ہے۔ ہمارے جیب میں
10 रुपया होता है, हम निकालते हैं दे देते हैं। हमारे जेब में 20 रुपया होता है, हम निकालते हैं दे देते हैं। हमारे जेब में 50 रुपया होता है, हम निकालते हैं दे देते हैं। गोया हमारा 10 रुपया नबी के नाम पे, हमारा 20 रुपया नबी के नाम पे, हमारा 50 रुपया नबी के नाम पे, यही तक महदूद नहीं है। कोई आपसे पूछे तू जान लुटा रहा है नबी के नाम पे, तू दौलत लुटा रहा है नबी के नाम पे, तू सर्वत लुटा रहा है नबी के नाम पे, तेरा सब कुछ नबी के नाम पे है। तू जान लुटाता है नबी के नाम पे, तू सोता है तो तेरी अदा बोलती है नबी नबी, जब तू चलता है तो तेरी अदा बोलती है नबी नबी, जब तू खाता है तो तेरी अदा बोलती है नबी नबी, जब तू सोता है तो तेरी अदा बोलती है नबी नबी। तू घर बार लुटाता है नबी के नाम पे, तू दौलत लुटाता है नबी के नाम पे, तू शोहरत लुटाता है नबी के नाम पे, सब कुछ तेरा नबी के नाम पे है। तो अहमदपुर के मुसलमान के सरजमीन के मुसलमानों, कोई आपसे पूछ ले तेरा सब कुछ नबी के नाम पे है, तो जिस नबी के नाम पे तू दौलत उठा रहा है, क्या तू उस नबी को जानते हो? तो कसम खुदा की मैं कहना चाहता हूँ, जिसने सहाबा की जिंदगी को पढ़ा होगा, जिसने ताबीन की जिंदगी को पढ़ा होगा, वो यही कहता हुआ नजर आएगा कि सुन्नत हमें से करनी की जिंदा करेंगे हम, सुन्नत हमें से करनी की जिंदा करेंगे हम, बिन देखे ही नबी से मोहब्बत करेंगे, बिन देखे ही नबी से, बिन देखे ही नबी से ऐसे मोहब्बत होगी, बिन देखे ही नबी से मोहब्बत करेंगे हम। अब तसव्वुर की दुनिया में मदीने चलिए, हर संत बरसते हैं अनवार मदीने में। अब जिन जिन लोगों की ख्वाहिश होगी कि सरकार मदीने वाले हमें बुला ले, वो मचल के जरा बोल देंगे कि हर संत बरसते हैं अनवार मदीने में, जिस रोज से रहते हैं सरकार मदीने में। या रब मेरी किस्मत में एक ऐसा सफर लिख दे, मक्के में करो सहरी तो इफ्तार मदीने में। या रब मेरी किस्मत में एक ऐसा सफर लिख दे, या रब मेरी किस्मत में एक ऐसा सफर लिखे, मक्के में करो सहरी तो इफ्तार मदीने में, और सब्ज़ बाग खजूरन की हो चारों ओर मदीने में। जब वहां मैं पहुंचूं, वहां का मंजर ये होना चाहिए मौला कि सब्ज़ बाग खजूरन की हो चारों ओर मदीने में, बीच में नाचे मेरे मन का व्याकुल मोर मदीने में। अरे जाते ही मिलाद का मौसम जी भर के मैं देख सकूं, अरे काश फ्लाइट मेरी उतरे भोरे भोर मदीने में, काश फ्लाइट मेरी उतरे भोरे भोर मदीने में। आप क्या समझ में आया कि हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? मोहब्बत रसूल। जिनके सीने में मोहब्बत रसूल नहीं है, वो किसी भी एतबार से कारगर नहीं है, वो किसी भी एतबार से काबिल एतमाद नहीं है, वो किसी भी एतबार से काबिल तारीफ नहीं है। मैं जुमला मोतरज़ा की तरफ, मैं ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ आता हूँ, फिर इंशाअल्लाह मोहब्बत रसूल के कुछ वाक़या मैं आपके हवाले करूँगा, मैं आपके सामने से गुजर जाऊँगा। ख्वाजा गरीब नवाज को सब जानते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज का महीना भी चल रहा है, मैं इनका एक वाक़या आपके हवाले करता हूँ बड़ी तेज़ी के साथ। ख्वाजा गरीब नवाज अपनी बारगाह में बैठे हैं, एक हिंदू जोगी आता है और आने के बाद कहता है, हुजूर आप तो ज़ाहिरी इंसान नजर आते हैं, लेकिन आपके सीने में, आपके दिल में, आपके अंदर नूर ही नूर फूट रहा है। वो जोगी घबरा के सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में अर्ज करता है, हुजूर आप तो ज़ाहिरी इंसान नजर आते हैं, लेकिन आपके अंदर नूर ही नूर फूट रहा है, आपके सीने में नूर ही नूर नजर आ रहा है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज, मुझे आपके अंदर कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही है जो इंसानियत के खिलाफ हो, आपके दिल में कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही है, लेकिन मुझे एक टेंशन है। ख्वाजा गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, वो हिंदू जोगी क्या बात है, तुझे किस बात ने टेंशन दिला दिया है? ख्वाजा गरीब नवाज से इरशाद फरमाते हैं, उस जोगी ने कहा, बाबा मुझे सब कुछ तो ठीक नजर आ रहा है, आपके अंदर नूर ही नूर नजर आ रहा है, आपका सीन नूर से मामूर है, लेकिन हुजूर आपके सीने में एक काला दाग है, आपके सीने में एक काला सा धब्बा नजर आ रहा है, आपके सीने में काली सी स्याही नजर आई है। कहता है, बाबा मुझे यही टेंशन दिला रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, वो हिंदू जोगी तुझे जो मेरे सीने में काला दाग नजर आ रहा है, अगर तू चाहेगा तो काला दाग भी खत्म हो जाएगा, अगर तू चाहेगा तो काली स्याही भी खत्म हो जाएगी। ख्वाजा गरीब नवाज का इतना इरशाद फरमाता था। जोगी कहता है, बाबा कैसी बात कर रहे हैं, वो कैसे दाग खत्म होगा? ख्वाजा गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, वो दाग यूं एतबार से खत्म होगा कि जब तू कलमा पढ़ लेगा ये दाग भी खत्म हो जाएगा। जैसे इतना कहना था, उस जोगी ने कहा, बाबा कैसी बात कर रहे हैं, दाग आपके सीने में है, कलमा मैं पढ़ूंगा और मेरे कलमा पढ़ने की वजह से आपके सीने से दाग खत्म हो जाएगा, आपके सीने से काला धब्बा खत्म हो जाएगा।
ख्वाजा गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, ओ ज्योति जो मेरे सीने में काला दाग तुम्हें नजर आ रहा है, तो तू कलमा पढ़ेगा और वो दाग मेरे सीने से मिटेगा तो तू उसे भी देख सकता है। अगर तुझे यकीन नहीं आता है, कलमा पढ़ के देख, वो दाग भी खत्म हो जाएगा। ख्वाजा गरीब नवाज का इतना इरशाद फरमाना था। वो जोगी कहता, बाबा अगर ऐसी बात है तो मुझे कलमा पढ़ाइए और इस्लाम में दाखिल कीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज कलमा पढ़ाते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इतना पढ़ाना था, पढ़ने की वजह से वो दाखिल इस्लाम होता है। ख्वाजा गरीब नवाज के सीने से वो दाग खत्म हो जाता है, वो स्याही मिट जाती है। वो जागा वो ज्योति ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आता है और आने के बाद कदमों पे गिर जाता है और गिरने के बाद अर्ज करता है, बाबा मुझे अभी भी बात समझ में नहीं आ रही है, माजरा अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दाग आपके सीने में था, कलमा मैंने पढ़ा है, दाग आपके सीने से खत्म हुआ है। इतना कहना था कि ख्वाजा गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, ओ नादान जोगी तू अभी भी समझ नहीं रहा है, जो मैं यहाँ बैठा हूँ मैं यूमिन नहीं बल्कि तेरे लिए मैं आईना बन के बैठा हूँ। जो तूने मेरे सीने में काला दाग देखा था, वो काला दाग मेरे सीने में नहीं बल्कि तेरे सीने में तेरे कुफ्र का दाग था। तूने जैसे ही कलमा पढ़ा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे सीने से वो दाग को खत्म कर दिया है। तभी तो किसी ने क्या ही खूब कहा है कि निगाहें मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कट जाती है ज़ंजीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कट जाती है ज़ंजीरें। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। कसम खुदा की, जो अल्लाह उसके रसूल के हो जाते हैं फिर तमाम दुनिया उसकी हो जाती है, उसके ताबे हो जाती है। जो चाहते हैं वही होता है। समझ रहे हैं आप? ये शादी की महफिल है, नबी की सुन्नत है। नबी की सुन्नत के द्वार से महफिल चल रही है। एक बड़ा खूबसूरत वाक़या मेरे जहन में आ रहा है। नौजवान हज़रात भी यहाँ मेरे बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग सब लोग यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं उलमा इकराम के कदमों का बोसा लेते हुए मैं बड़ा एक बात मुझे जो जहन में आ रही बड़ी खूबसूरत वाक़या है। आज जो अक्सर हमारे मुआशरा में है, आज लोग बात करते हैं शरीयत इस्लाम, इधर उधर की बातें करते हैं, मिटाने की बातें करते हैं। मैं कहता हूँ कि सैलाबी तअस्सुब तुम्हें बहने नहीं दूंगा, जुल्मत का सितम कौम को सहने नहीं दूंगा। कानून शरीयत से जो खिलवाड़ करेगा हम उसको कभी चैन से रहने नहीं देंगे। कानून शरीयत से जो खिलवाड़ करेगा हम उसको कभी चैन से रहने नहीं देंगे। आज मुआशरे में बेटी ने वो जज्बा पैदा किया है लोगों के सीनों में, लोगों के दिलों में, जो अपने आप में काबिल तारीफ है। आओ मैं इस्लाम की एक शहजादी का वाक़या आपके सामने सुनाता हूँ। आप अपने मंजर आप अपने निगाहों के सामने बीबी मुस्कान बीबी को भी सामने रखें। और एक वाक़या जो खूबसूरत इस्लाम की शहजादी का मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। हज़रत उमर का ज़माना है। हज़रत उमर के ज़माने तक औरतें मस्जिद नबी में नमाज़ें पढ़ने के लिए जाया करती थी। तो हज़रत उमर का ज़माना है। एक नौजवान लड़की कह लीजिए दोशीजा जो नमाजें मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने के लिए जाया करती थी, रोज़ाना नमाज वहाँ अदा करने के लिए जाया करती थी। जिस रास्ते से गुजरती एक नौजवान उसी रास्ते पे खड़ा होता। जब वो लड़की उस रास्ते से गुजरती तो वो नौजवान उसके रास्ते को रोकता, उसे इंटरफेयर करता। 1 2 3 4 5 दिन जब गुजर गए, कुछ वक्त कुछ लम्हा गुजर गया, कुछ दिन गुजर गए, 2-3 रोज गुजरने के बाद वो लड़की वहाँ पे खड़ी हो गई। जब गुजरती तो वो नौजवान उसका रास्ता रोका। रोकने के बाद उसे छेड़खानी के तौर पे कह लीजिए या जो कह लीजिए उसने करने की कोशिश की। उस लड़की ने वहीं खड़ी होकर पूछी, क्या बात है, तुम्हें क्या मकसद है, तेरा मकसद क्या है, तेरा मतलब क्या है, तुम क्या चाहता है। उस नौजवान ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। उसने कहा मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। लेकिन वो आजकल की आवारा लड़कियां नहीं थी, उसके सीने में मोहब्बत रसूल थी, उसके दिल में खुदा का खौफ था। उसकी जो जिंदगी गुजरती थी अल्लाह उसके रसूल के मोहब्बत में गुजरा करती थी। उस लड़की ने कहा तुम मुझसे मोहब्बत करता है। उस नौजवान ने कहा हाँ मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे भाइयों तुम भी गौर से सुनो, मेरी माँ बहनें बैठी हुई वो भी मेरी बातों को गौर से सुनो और इस्लाम की शहजादी को अपना सलाम पेश करे। उस लड़की ने कहा तुम मुझसे मोहब्बत करता है, तुम अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। उस नौजवान ने कहा मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। उस लड़की ने कहा मेरे लिए तुम क्या कर सकते हो। उस लड़के ने कहा मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसने आजकल के आवारा लड़कों की तरह वो भी लड़का था, उसने सोचा कि लड़की जो भी कहेगी मैं इनकी तमाम बातों को मान लूंगा। उस नौजवान ने कहा ए लड़की मैं तेरे लिए कुछ भी करने को
तैयार हूँ। अगर तू कहे तो मैं आसमान से तारे तोड़ कर ला सकता हूँ, अगर तू कहे तो मैं जमीन को चीर कर पानी निकाल सकता हूँ। उस लड़की ने कहा इतना करने की जरूरत नहीं है। उस लड़की के सोच पे आप कुर्बान जाइए। उस बहन ने कहा बस इतना तुम्हें करना है कि हजरत उमर के पीछे 40 दिन बाद जमात नमाज अदा करनी है। क्या कहा? 40 दिन नमाज बाजमात हजरत उमर के पीछे अदा करनी है। उस नौजवान ने सोचा, मैंने तो सोचा था कि आसमान से तारे तोड़ के लाने के लिए तुम कहोगे, मैंने तो सोचा था कि तुम जमीन से पानी निकालने के लिए कहोगे, लेकिन तूने इतनी छोटी सी बात कह दी। उसे खबर कहा था जो अल्लाह उसके रसूल का होता है ये सारी दुनिया उसकी होती है। उस नौजवान ने उस शर्त को मान ली। उस लड़की ने कहा तू हजरत उमर के पीछे 40 दिन नमाज बाजमात अदा करेगा, मैं 40वां दिन खुद तेरा यहाँ पे इंतजार करूंगी। ये शर्त जब हो गई, शर्त लग गई, ये शर्त लगने के बाद शर्त के मुताबिक लड़का नमाज पढ़ना शुरू करता है। हजरत उमर के पीछे 1, 2, 3, 4 दिन नमाजें पढ़ता है, 5, 10 दिन नमाजें पढ़ता है, यहाँ तक कि 15 दिन गुजर जाता है, 20 दिन गुजर रहा है। यहाँ तक ख्याल ज़हन दिमाग में यही गुजर रहा है उस लड़की को हासिल करना है, उस लड़की को मोहब्बत को पाना है। यहाँ तक कि 15-20 दिन गुजर जाते हैं, 25-30 दिन गुजर जाते हैं, 35 दिन गुजर जा रहे हैं, 36, 37 और 38 दिन गुजर जा रहे हैं। लेकिन ख्याल यही है कि उस लड़की को हासिल करना है, उसकी मोहब्बत को पाना है। यहाँ तक कि 38 दिन गुजर गए, 39 दिन मुकम्मल गुजर जाते हैं, लेकिन अभी दिल में यही ख्याल है कि उस लड़की को हासिल करना है, उसकी मोहब्बत को हासिल करना है। ज़हन दिमाग में यही बात चल रही है। लेकिन 40वां दिन की जैसे नमाज फजर अदा करता है, उसके सीने में मीठा मीठा दर्द होना शुरू हो जाता है, उसके सीने की कैफियत बदलना शुरू हो जाती है, उसकी दिल की कैफियत बदलने लगती है। नमाज बाजमात फजर की नमाज बाजमात अदा करता है, फिर सुबह अदा करता है, फिर असर अदा करता है, मगरिब अदा करता है, उसकी दिल की कैफियत बदल रही है। नमाज मगरिब अदा करने के बाद नमाज इशा हजरत उमर के पीछे जैसे ही अदा करता है, उसके दिल की मुकम्मल कैफियत बदल जाती है, उसका बिल्कुल ज़हन दिमाग बदल जाता है। अब वही नौजवान था जो लड़की की मोहब्बत हासिल करने के लिए नमाज अदा करता था। 40वां दिन की नमाज इशा अदा करने के बाद अब निगाहें नीचे झुक गई है, उसी रास्ते से गुजरता हुआ अपने घर को जा रहा है तो क्या देखता है वो लड़की वहीं पे खड़ी है। उस नौजवान ने अपनी निगाहों को नीचे किया, नीचे करने के बाद उस लड़की के सामने से गुजरना चाहता है। जैसे गुजरता है उस लड़की ने कहा ए नौजवान सुन, मैं अल्लाह उसके रसूल की वफादार हूँ, मैंने तुझसे शर्त रखा था तू हजरत उमर के पीछे नमाज बाजमात 40 दिन अदा करेगा तो मैं 40वें दिन खुद तेरा यहाँ पे इंतजार करूंगी, वो मैंने शर्त के मुताबिक यहाँ पे तेरा इंतजार कर रही हूँ। उस नौजवान ने कहा ए मेरी बहन, जहाँ भी तू इंतजार कर रही है वहीं पे इंतजार करती रह, क्योंकि मैंने हजरत उमर के पीछे जैसे ही 40वें दिन की नमाज बाजमात अदा की है, हजरत उमर ने मेरे दिल के रिश्ते को अल्लाह उसके रसूल से जोड़ दिया है। अब मुझे बड़ी जरूरत। उस नौजवान ने कहा ए बहन, हजरत उमर ने मेरे दिल के रिश्ते को अल्लाह उसके रसूल से जोड़ दिया, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत अल्लाह उसके रसूल की है। कसम खुदा की हमारे मुआशरे में ऐसी बहनें पैदा हो जाए, ऐसी माएँ पैदा हो जाए, ऐसी बेटियां पैदा हो जाए तो इंशाअल्लाह हमारे मुआशरे का हर नौजवान नमाजी नजर आएगा। आज हमारी बहनों की कम कमी है, आज हमारी बेटियां इस्लाम के खिलाफ बात कर रही है, आज हमारी बहनें इस्लाम के खिलाफ बात कर रही है, आज हमारे घर की औरतें इस्लाम के खिलाफ बात कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ आज हमारे घर की बेटियां इस्लाम के खिलाफ बात कर रही है, इसमें गलती किसकी है? आज हमारे घर की माएँ इस्लाम के खिलाफ बात कर रही है, कभी पर्दा के खिलाफ बात करती है, कभी तलाक के खिलाफ बात करती है। क्यों बात करती है? क्योंकि उसके सीने में इस्लाम की बरकत नहीं है, उसके सीने में इल्म दीन की बरकत नहीं है। ए मुसलमानों, मैं कहना चाहता हूँ तू अपने बेटी की जिंदगी में, तू अपने बेटे की सीने में मोहब्बत रसूल को डाल दे, तू अपने बेटी के सीने में इल्म दीन को डाल दे। जब तेरे बेटी के सीने में इल्म दीन पैदा हो जाएगा तो किसी दुनियादार को अपना महबूब नहीं बनाएगी, बल्कि मदीने के ताजदार को अपना महबूब बनाएगी। और बनाने के बाद यही कहती हुई नजर आएगी कि हम अपना म्यार जमाने से जुदा रखते हैं, हम अपना म्यार जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं।
ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. یہ کب آپ کی بیٹیاں کہیں گی جب اس کے سینے میں محبت رسول ہوگی. یہ کب آپ کی بیٹیاں کہیں گی جب اس کے سینے میں خوف خدا ہوگا. یہ کب آپ کی بہنیں کہیں گی جب اس کے سینے میں اسلام کی محبت ہوگی, جب اس کے سینے میں اسلام کی محبت ہوگی, جب اس کے سینے میں اسلام کا درد ہوگا, جب اس کے سینے میں نبی کی محبت ہوگی. تو پھر آپ کی بیٹی اسلام کے خلاف بات نہیں کرے گی, بلکہ آپ کی بہن آپ کی بیٹی یہی کہے گی اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا. ارے اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا. جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی بڑا ہوگا, جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی بڑا ہوگا. قسم خدا کی میں ایک پیغام آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں. اپنے بیٹیوں کے سینے میں, اپنے بہنوں کے سینے میں, اپنی ماؤں کے سینے میں علم دین کی برکتیں کو ڈال دو. اپنی ماں کے سینے میں جب علم دین کی برکتیں ڈال دو گے انشاءاللہ اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ تمہارے سینے میں محبت رسول ہونی چاہیے. یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ تیرے دل میں خوف خدا ہوگا. علم دین ہوگا محبت رسول ہوگی. علم دین ہوگا خوف خدا ہوگا. علم دین ہوگا اسلام کا درد ہوگا. علم دین ہوگا ماں باپ کی محبت ہوگی. علم دین ہوگا بھائی کی محبت ہوگی. گویا سب کی محبت ہوگی. وقت اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں آگے بڑھوں, لیکن جتنی باتیں میں آپ تک پہنچایا ہوں, جتنی جو پیغام میں آپ تک دیا ہوں رب قدیر کی بارگاہ میں سب سے پہلے دعا ہے مولا مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. ان کے بعد جتنے ہمارے یہاں بھائی بیٹھے ہیں ان کو توفیق رفیق عطا فرما. ایک شعر میں آپ کے حوالے کر کے بڑی تیزی سے گزر رہا ہوں کہ یہ جیو کا 4G آئے گا اور جائے گا. ایک زندہ حقیقت ہے, کیونکہ یہ ٹیلی نار ہو, ایئرٹیل ہو, وی آئی ہو, جتنے سیم ہیں ان کا آنا جانا لگا رہے گا. لیکن ہمارا کیا ہونا چاہیے مقصد کہ یہ جیو کا 4G آئے گا اور جائے گا. 2G اور 3G تم کو ٹینشن دلائے گا. سجا لو عشق نبی دل کے کمپیوٹر میں, یہ ڈاٹا تم کو قیامت میں کام آئے گا. یہ ڈاٹا تم کو قیامت میں کام آئے گا. اور اتنا کرم غلام پہ فرمائے مصطفیٰ, جب موت آئے سامنے آ جائے مصطفیٰ, نوکر بنا کر ساتھ رکھے مجھ کو حشر میں, پھر اپنے ساتھ جنت میں لے جائے مصطفیٰ. جو میں نے انگلش کے الفاظ بولے تھے بس میں اس کا ٹرانسلیٹ کر کے تصویر کو ختم کر رہا ہوں. The Islamic world is passing this time of a very difficult time of Islam's history. The problem facing the Muslim community are facing today. Perhaps such problems are never present in the past. So in the sense the old history of the Ummah Muslim is the history of crisis. کہنے والوں نے کیا ہی خود کہا ہے, جو اسلامی نوجوانوں کے سامنے, جو اسلامی نظریات کے سامنے آج پریشانی موجود ہے, جو ہمارے سامنے آج طرح طرح کی پریشانیاں آ رہی ہیں, وجہ کیا ہے؟ یہ پریشانی پہلے موجود نہیں تھی. بات کب کی ہو رہی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے کی بات ہو رہی ہے, حضرت عمر کے زمانے کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ ان کا اخلاق اتنا خوبصورت تھا, ان کا اخلاق اتنا بہترین تھا کہ ایسے پریشانیوں کی ضرورت نہیں پڑی, بلکہ وہ قرآن مجید وہ اپنے اخلاق کو پیش کرتے, لوگ اسلام قبول کرتے ہوئے نظر آتے. آج ہمارا اخلاق بدل گیا ہے, اس لیے اپنے سینے میں اسلام کی محبت کو ڈالو, اپنے سینے میں اسلام کے درد کا ڈالو. انشاءاللہ العزیز ہم بھی کامیاب ہوں گے, اور صرف دنیا میں نہیں انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. مولا جو ہمیں بولنے میں غلطیاں ہوئی مولا میں اسے استغفر اللہ کرتا ہوں, اور جو میں نے حق بیان کیا مولا اسے عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. وعلینا الی البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.